Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am Ruxana, teacher posted at Boys Middle School, Langate. Today I am going to teach English to class 7 students, and our today's topic is tobacco, the silent killer. First, I will read it. Tobacco is a common name applied to the plants of the nightshade family that are cultivated for their leaves. The tobacco plant is one of the most important commercial non-food crop grown in the world today. Tobacco plant grow 1 to 3 meters or 3 to 10 feet and produce between 10 and 20 broad leaves. These leaves are dried, processed and used to produce cigarettes, cigars and chewing tobacco. It is said that Christopher Columbus and his men on landing on the island of Tobago in 1492 found the natives using tobacco leaves for pleasure. Since then, the habit of smoking has spread to different cultures over the world, and smoking has become a big industry at the cost of health. Tobacco smoke contains over 4,000 chemicals, 43 of them are carcinogenic. These include chemicals such as polycyclic hydrocarbons. It also contains cellular irritants such as ammonia, formaldehyde, and oxides of nitrogen. Carbon monoxide, which binds to hemoglobin and reduces its oxygen carrying capacity, is also present in it. The major component, however, is nicotine, which has harmful effects on the nervous system in humans. It is highly addictive and causes an increased heart rate and high blood pressure. Uses of tobacco. Nicotine obtained from the plant is widely used in agriculture as an insecticide. Refined tobacco seed oil can be used as a substitute for groundnut oil as it contains no nicotine. It can also be used in oil paint and varnish industries. Tobacco was used in past in medicine as a sedative and for treatment of gastrointestinal disorders. Nicotine is also a valuable constituent of many vitamin preparations. Here I have written the meaning of some of the new words. Students, as the name itself suggests, that is tobacco the silent killer, यानी तंबाकू एक खामोशी से मारने वाला चीज़. What is tobacco? Tobacco is an agricultural crop. It is an agricultural product and a commercial non-food crop. It is grown for its leaves. हम इसके leaves ही यूज़ करते हैं. Tobacco plant के सिर्फ leaves हम यूज़ करते हैं. It is used in different forms. Either we chew it or we use it for smoking. टोबैको जो है इन्हें तंबाकू टोबैको एक प्लांट का नाम है जिसे क्यों खतर से कल्टीवेट कर रही जो किसके लिए उगाया जाता है उसकी लीव्स के लिए. टोबैको प्लांट जो है ये कमर्शियल प्लांट है. इसकी हाइट जो है ये 1 to 3 मीटर्स लॉन्ग होता है और 10 से 20 पत्ते निकलते हैं और वही पत्ते उन्हें सुखाया जाता है. उसके बाद प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद उन्हें इस्तेमाल किया जाता है सिगरेट्स में, सिगार्स में या फिर च्यूइंग के लिए या एज अ च्यूइंग टोबैको. कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में एक आइलैंड पे गया. जब उसने उस आइलैंड पे लैंड किया तो व्हाट डिड ही सी, उसने देखा कि वहाँ के जो लोग थे दे वर यूजिंग टोबैको लीव्स फॉर प्लेजर. वहाँ के लोग जो थे वो टोबैको लीव्स यूज़ करते थे जस्ट फॉर प्लेजर. और तब से लेके अब तक द हैबिट ऑफ स्मोकिंग जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है. आज पूरे दुनिया के लोग जो है वो स्मोकिंग करते हैं. इसके बावजूद कि इसकी बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क्स है. टोबैको स्मोक जो है इसमें लगभग 4,000 केमिकल्स होते हैं जिनमें 43 कार्सिनोजेनिक हैं. कार्सिनोजेनिक यानी जिनसे
जो कैंसर काज करते हैं, जिनसे कैंसर हो जाता है। इन केमिकल्स में कौन कौन से केमिकल्स आते हैं? पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। टोबैको स्मोक जो है, इसमें एक और केमिकल भी होता है, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ये ह्यूमन बॉडी में जब एक स्मोक करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी वो अंदर इनहेल करता है, और जब ये अंदर पहुंच जाता है ह्यूमन बॉडी में, वहाँ पे ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की, वो बहुत कम होती है। हीमोग्लोबिन जो है वो इस हीमोग्लोबिन की फंक्शन होती है कि वो बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई ट्रांसफ़र करे, वो अपने साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है और हर एक सेल तक ले जाता है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी लंग्स में पहुंच जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन के बदले कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, और जब ऑक्सीजन के बदले कार्बन मोनोऑक्साइड ने बाइंड किया, तो ऑब्वियसली जब ब्लड सप्लाई हो जाता है तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और हमारी सेल्स को ऑक्सीजन जो चाहिए होता है, दैट्स ऑक्सीजन, वो नहीं पहुंचता, बल्कि उसके बदले क्या पहुंच जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। टोबैको का जो मेजर कंपोनेंट है, दैट इज़ निकोटीन। निकोटीन जो है वो बहुत ही हार्मफुल है, किसके लिए? हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। निकोटीन हाईली एडिक्टिव है, यानी इसकी बहुत ज़्यादा जल्दी लत लग जाती है निकोटीन की वजह से। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? ये इंक्रीज हार्ट रेट करता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं निकोटीन की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर होता है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होती है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ टोबैको। टोबैको के कुछ यूजेस भी हैं, जैसे कि निकोटीन जो है, जो टोबैको प्लांट से हम निकालते हैं, वो इस्तेमाल होता है एज एन इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। और रिफाइंड टोबैको सीड ऑयल, ये इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ग्राउंड नट ऑयल इन, क्योंकि इसमें निकोटीन नहीं होता है। टोबैको सीड ऑयल भी यूज़ होता है, ये ऑयल पेंट और वार्निश इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। पास्ट में जब इतने ज़्यादा मेडिसिन नहीं थी, तब टोबैको एज ए मेडिसिन यूज़ होता था, किसके लिए? एज ए सीडेटिव ड्रग, यानी जिससे आराम मिलता था। सीडेटिव ड्रग वो होता है जिससे आराम मिले, जिससे नींद आए। टोबैको की एक और यूज़ भी है, लेकिन आज ये पास्ट में इसकी ये जो यूज़ थी वो थी, इट वाज यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, और बहुत सारे विटामिन प्रेपरेशन जो है उसमें भी ये यूज़ होता था। थैंक यू।